Hello, I welcome you all. Today again we have with us your spiritual companion Shri Narendra Malhotra ji. I welcome you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. Shri Narendra ji strongly profess himself as spiritual scientist. So sir, I would like to know what is scientific spirituality? That's a very good question, madam. And in this age of science, only and anything that will prevail, whatever is based on science and scientific analysis. So before coming to scientific spirituality, let me in brief explain what is science. How science has such a credibility and because of what factors. To my mind, it has 4 factors which make anything scientific or which makes and brings anything from being unscientific and shifting it to the zone of being scientific. That is one, theorization, एक theory होनी चाहिए. Then experimentation, which leads to the conclusions. Then observations and conclusions. Then its repetitive occurrence and correctness. For example, आप लेबोरेटरी में गए, पानी बनाना है आपने, तो जो साइंटिस्ट है H2 के H के 2 कंटेंट हाइड्रोजन के लेगा, ऑक्सीजन का 1 कंटेंट लेगा, मिक्स करते ही पानी की ड्रॉप आ जाएगी. ये मैं 1000 बार भी रिपीट करूंगा, सेम कंक्लूजन आएगा. थियराइजेशन इज कि 2 कंटेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू वाटर. वाटर मीन्स H2O. Chemical compositions. Then this theorization has led to this experimentation, and experimentation has led to this theorization, and then observation, then the conclusion, and the result is water. 1, 2, 3, 4, 5 across the globe, whether the laboratory is in India or the laboratory anywhere, H2SO4 similar. So this scientific analysis, because it was absent in our Indian spirituality, that's why a commoner and a common man in the street, layman, got out of touch with it. कि यार ये कुछ बाबा बुबा और जो बड़े बड़े साधु संत हैं, ये कुछ उन लोगों का मसला है. प्रोफेशनल्स की थिंकिंग बता रहा हूँ, जो वेस्टर्न वेव्स और वेस्टर्न विंड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, जो लॉजिक को लॉजिकल अपील को मानने को तैयार है. मैं उनको कह दूं कि जाओ, हनुमान जी के मंदिर नहीं जाने वाले. दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच आर द मॉडर्न प्रोफेशनल्स, विच आर नेटिजन्स, 2 कैटेगरीज, सिटीजन्स एंड नेटिजन्स. जो नेट को यूजर्स हैं, नेटिजन्स आई कॉल देम. नेट यूजर्स प्रोन टू द इंटरनेट, जिनका गुरु कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, गूगल गुरु है. बिल्कुल. बिंग, पिंग, याहू, गूगल. वो कोई माँ बाप से कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, नॉलेज नहीं लेना चाहते. किसी भी टीचर से सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज ले ली, उसके बाद वो है और उनका गूगल गुरु है, गूगल बाबा है. मैं जो भी इस समय कह रहा हूँ, वो इसको गूगल से वेरीफाई करेंगे. I am open to that. So when I have dealt with spirituality, when I profess myself from the house top, घर के छत पे चढ़ के मैं चिल्ला रहा हूँ कि भैया मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ, और ये आपके साइंस के टेनेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं. अब मैं इसको स्पिरिचुअलिटी पे लागू करता हूँ, मैं इनको कनेक्ट करता हूँ. तो ये जो आपकी प्रिजुडिसेस है ना कि स्पिरिचुअलिटी इज़ ए फील्ड ऑफ सैफरन क्लैड, लॉन्ग बियर्डेड, वाइट बियर्डेड, आश्रम लिविंग पीपल, इसको छोड़ दीजिए. मैं आपके कॉरपोरेट सेक्टर में 3 पीस सूट पहन के, बहुत अच्छी टाई बो लगा के आके बैठ जाता हूँ.
ये टॉपिक अलग है कि स्पिरिचुअलिटी द मोनोपोली ऑफ saffron clad saints and long bearded white bearded ashram dwelling people, और इट इज़ कम आउट ऑफ दैट, आ चुका है भैया। आपको स्पिरिचुअलिस्ट इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा लगता है, ऑनलाइन डिस्कोर्सेज आपको अच्छे लगते हैं, द मोमेंट यू गेट मोनोटनी यू स्विच ओवर टू अनदर चैनल। So this, with this brief background, now I will touch upon the topic of spirituality in a scientific manner. Okay. As I've explained that these are 4 tenets, 4 ingredients. Now I apply the ingredient of science, that is theorization, that is experimentation, that is observation, that is conclusion, and its repetitive occurrence. Okay. In this anatomical body, there is parallelly an astral body which is not visible by these simple eyes. This astral body is also called causal body, ethereal body, spiritual body, conscience, soul, so many names. This is called आत्मा in हिंदी. ये आत्मा ही आपके शरीर को परमात्मा के साथ मुलाकात कराती है. This astral body is connected with this anatomical bodies at 7 places. These are called 7 spiritual centers or chakras. ये इनके meeting point है. ये जहाँ ये मिलते हैं. ये है at crown level, forehead में. फिर ये एक third eye chakra. Then this is one is at throat level, one is at heart level, one is at navel level. 2 are beneath that. These have different names, and all these centers have their peculiar and typical characteristics. Okay. आप एक धर्मगुरु के पास जाते हो, कहते जी मुझे शांति चाहिए, वो ऐसे कल्याण का हाथ देते हैं, ना वो कल्याण के हाथ से शांति आनी, ना आप तक पहुंचनी, आप भी उसकी शर्मा शर्मी हाँ करके आओ जी मैं शांत रहने लग गया, ऐसे नहीं आना. बिल्कुल. हर सेंटर की क्वालिटी है, हर सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है. गले का सेंटर आपकी एलोक्यूशनरी स्किल को इतना इंक्रीज कर देगा, पूछो ही मत. हार्ट का सेंटर आपको इतना लवफुल और कंपैशनेट और सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक बना देगा, अनप्रेसिडेंटेड. सिमिलरली थर्ड आई सेंटर विल इंट्रोड्यूस यू विद योर सेल्फ by way of strong meditational waves that you will feel through meditation and through divine flashes and through divine visions. जिस जैसे इसकी एक्टिवेशन होगी वो आपको आपकी डेस्टिनी से इंट्रोड्यूस करा देगा. You and your destiny will be vis-a-vis, आमने सामने आगे खड़े हो जाएंगे. आप ये क्या, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. नेवल सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आप में एंथुसियाज्म भर देगा, आपके पेसिमिज्म को वो ऐसे उड़ा देगा जैसे कि मैं पहले भी कई बार कहा हूँ, जैसे कार की विंड स्क्रीन से वाइपर चलाने पे और फव्वारा चलाने पे डस्ट और स्नो वगैरह, इट इज़ गोन अवे. हर सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक है. मेडिटेशन में आप 15 दिन जाओगे और हर सेंटर का अपना कलर है. विबग्योर, वायलेट, indigo, blue, and then green, and then yellow, and then red. मैं उस पे आ रहा हूँ. थियोराइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन आपने एक्टिवेशन किया थ्रू मेडिटेशन, तो भैया एक्सपेरिमेंटेशन तो कर दिया, पता कैसे लग रहा है कौन सा अंदर क्या चल रहा है. हाँ जी. ये जो आप आईज बंद करते और सामने फोरहेड पे ब्लैक कलर है जो बचपन से आपने इनहेरिट किया है, और अगर आप मेडिटेटिव नहीं हो तो यही कलर आप आगे अपनी वसीयत में बच्चों को दे के जाने वाले हो. यू हैव इनहेरिटेड, यू आर गोइंग टू बिक्वीद इट, हैंड इट डाउन टू योर कमिंग जनरेशंस एंड प्रोस्पेरिटीज. फर्क कोई नहीं पड़ना. यू विल बी अमेज्ड टू सी कि एज इवन ए सिंगल इंडिविजुअल चक्रा इज एक्टिवेटेड, द रिलेटेड कलर इज, ये आपका फोरहेड का कलर बदल जाएगा. इट इज़ वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन कि मेरा वो चक्र एक्टिवेट हो रहा है और उस चक्र से रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं
मेरे माइंड को, मेरे बिहेवियर को सप्लाई होने शुरू हो गए। आपकी प्रॉब्लम है गुस्सा बहुत आता है, तो आप जॉय अबंडेंस मेडिटेशन से आप नेवल सेंटर को एक्टिवेट करिए। You will be amazed to see, for the first time in your life, you will laugh without a joke and you will smile without a cause. आप हैरान रह जाओगे कि अब तक तो हंसने के लिए या तो किसी कॉज की जरूरत पड़ती थी या जॉक की जरूरत पड़ती थी। नो, गॉड हैज मेड सच ए प्रोविजन। परमात्मा को सब पता है आप किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और उसने उसको काउंटर करने का तरीका भी बताया। आई कॉल माई सेल्फ spiritual scientist because during meditational exercises you will see the change of colors on your forehead. Sometimes it is indigo, sometimes it is red, sometimes it is golden red, sometimes it is blood red. Sometimes when you are sitting and doing meditation in the sun, the colors are amazing, golden red. You will be lost in the color, not in the meditation. You are there, and meditation will introduce you with you. So after all these things, then you will find that this is the conclusion, and now you are becoming a different self, different person. And I will explain two things. One is सर्कुलर। आम इंसान एक सर्कल में घूमता रहता है। ज़मीन पे एक सर्कल है, कोल्लू का बैल है, घूमता रहता है, पैसा कमाने जाता है, आ जाता है, थक जाता है, चाय पी लेता है, सो जाता है, अगले दिन का ये दिस इज वी कॉल इट इन स्पिरिचुअलिटी ए सर्कुलर वे ऑफ योर लाइफ। द सेकेंड इज स्पाइरल। एक स्प्रिंग होता है सर्कल में, उसका सर्कल तो अपवर्ड है। Meditation will provide you with vertical growth, vertical uprise, vertical up movement of your growth of personality, and will transform you, will transpose you, will place you onto a different platform. All your surroundings will tell you that you are something different. In the beginning, when we used to talk about in India, there is a very famous instinct, sadistic instinct, you must be knowing, कि परपीड़क। हमारे इंडिया में आनंद का एक जरिया दूसरे को पीड़ा पहुंचाना बहुत बड़ा है, कि आज इसको दिखाना है मेरी बड़ी गाड़ी है। आनंद गाड़ी से तो आना ही नहीं, आनंद उस ऑब्जेक्ट से आना जिसको परेशानी कर दिया आपने। करेक्ट। दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश सैडिस्टिक सेटिस्फैक्शन। ये सैडिज्म इंडिया में बहुत है। आप किसी फॉरेनर से मिलोगे, ऐसा नहीं है। माई डॉटर इज लॉइज फ्रॉम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, एंड दिस डिफरेंस वाइल वी इंटरेक्ट विद हर, शी इज़ हैप्पी। दो ड्रेसेस हैं, कोई लेना देना नहीं। और इंडियन में जब तक कि वो महंगा सा लहंगा ना पालें 51,000 का, और जब तक दुनिया जहान के कमेंट नहीं आया, मज़ा ही नहीं आया। उनको इस चीज़ से कुछ नहीं लेना, बिकॉज दे डिराइव ए सेल्फ ड्रीवन प्लेजर, नॉट ए सैडिस्टिक प्लेजर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज। सॉरी टू कमेंट ए बिट नेगेटिवली, but it's a fact, and unless we admit a fact, we are not going to correct this fact. अरे भैया आप एंजॉय करो ना, आपने गाड़ी ले ली, मस्ती करो, घर बना लिया, मस्ती करो ना, मज़ा आना ही नहीं है। So where I left was that you will be introduced with self-driven pleasure. That will give you a sense of completion. That will give you a sense of satisfaction. And all other people, whosoever was maybe your closest friend but was enjoying a sadistic pleasure in your company, will find that your pleasure is his or her pleasure equally. आपके pleasure को शायद वो आपसे ज़्यादा enjoy कर जाए, because sympathy में आप दूसरे से सहानुभूति करते हो, empathy में आप वो हो जाते हो। There is difference between there, you see,
Madam, every word has a different connotation, but these are being used as synonymous. In empathy, you superimpose yourself upon that self. अगर आपके परिवार के किसी मेंबर की टांग अगर टूटी हुई है, वो नहीं चल पा रहा, तो आप उसके साथ टांग बन के खड़े हो जाते हो. So you will be able to enjoy his or her pleasure in a far better manner. वो कार में आपको घुमाएगा, आपका नशा ही अलग है, कार उसकी, नशा आपका. You will be a transformed personality. This is scientific spirituality which will be actualized in your personality, which we realized in your personality, which we will give you enough scope to visualize, then actualize, then practicalize, then realize, and all this process. This I call as scientific spirituality. I will continue to talk on this aspect, every spiritual aspect, in a scientific manner furthermore.